নমস্কার বন্ধুরা, পম্পার পাঁচমিশালি চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, একঘেয়েমি জীবন থেকে একটু বেরোবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম বাইরে কিছু ঘোরার উদ্দেশ্যে। কোথায় যাচ্ছি, কোথায় ভ্রমণ করছি, সব ভিডিওগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখতে থেকো ভিডিওটা পুরো। তো বন্ধুরা, প্রথমে দেখো ট্রেনে চেপে, শিয়ালদা থেকে ট্রেনে চেপে আগ্রার উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হয়ে গেলাম। তো এবার আগ্রা স্টেশনে নেমে গিয়ে আমরা ওখানে দেখতে পেলাম ওখানে কিছু পুজোর ভাসান টাসান হচ্ছিল, পুজো হচ্ছিল, এই নিয়ে বেশ সবাই খুব করছিল, আনন্দ করছিল। ওখানে দুর্গা ঠাকুরগুলো আমাদের থেকে একটু ছোট হাইটের হয়, অত বড় বড় হয় না। বলে না কলকাতার পুজো সেরা পুজো, তো সেরকমই ওখানের পুজোগুলো একটু ছোট হলেও কিন্তু সবাই ভীষণ আনন্দ করে। এবার আমরা আগ্রার হোটেলে প্রবেশ করে গেলাম। এবারে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আগ্রার তাজমহল দেখার উদ্দেশ্যে। সবার মনে ভীষণ আগ্রহ ছিল, সবাই বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করছিল। সত্যি এটা আমার নিজেরও কৌতূহলে ভরা ছিল। তো যাই হোক, ওখানে গিয়েও কী দেখবো সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। চলো, গেট অবধি যাওয়ার জন্য আমাদের একটা টোটো করতে হয়েছিল। তো সবাই একটা বড় টোটোর মধ্যে চেপে বসে জুয়েলারিগুলো পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা এখন বেস্ট গেট পার্কিং থেকে বেরোচ্ছি। দেখো প্রচুর হনুমান এখানে, দেখো, দেখছো, খুব সুন্দর জায়গাটা, বেশ ভালোই লাগছে। এখান থেকে টোটো করে বেরালাম তাজমহল দেখার উদ্দেশ্যে। তো তাজমহলের গেট অবধি যেতে গেলে এখানে আমাদেরকে একটা টোটো ভাড়া করতে হবে। সেই টোটো নিয়েই চলছে। অচেনা জায়গায় অচেনা মানুষ দেখলে যেরকম হয়, যা খুশি দাম চায়, সেই নিয়ে দর কষাকষি হচ্ছে। তো আমরাও ওইভাবেই হেঁটে চলেছি, দেখা যাক কতটা কি পাওয়া যায়। এবারে আমরা কি করবো বলো তো, টিকিট কাটছি, টিকিট কেটে লাইনে দাঁড়াবো। লাইনের ভীষণ ভিড় ছিল, ভীষণ ভিড়। আর এমন কি দেখলাম অনেক স্কুল স্টুডেন্টরাও এই আগ্রার তাজমহলটা দেখাতে আসে। শিক্ষণীয় স্থান, তো অবাধ দর্শন হয় সবারই, তো সেই কারণে সবারই আসে। তো টিকিট কেটে আস্তে আস্তে ভেতরে প্রবেশ করলাম। এই যে দেখো, এই শুরুটা ঢুকে পড়েছি তাজমহলের উদ্দেশ্যে। এখানে চলো এবার তাজমহলের মূল গেট দিয়ে ঢোকা যাক। দেখো ভেতরে যেতে গেলে দেখতে পাবে অনেক ছোট ছোট বিভিন্ন রকম কাজ আছে, অনেক ইতিহাস লুকিয়ে আছে। তো কিছু কিছু জানবো, চলো দেখা যাক। আমরা এসে মনে হতে লাগলো যে সবাই বলে না তাজমহল থেকে চোখ ঘোরানো যায় না, সত্যি অপূর্ব সুন্দর তাজমহলটা দেখতে। এখানে এসে শুধু আমরা না, সবাই পাগল হয়ে যাচ্ছে ফটো তোলার জন্য। মানে এত সুন্দর, সবাই মনে হয় যে একটু স্মৃতি রেখে দিতে পারলে হয়তো ভালো হবে। ইতিহাসটা আমি বলতে পারছি না ঠিক, কিন্তু অপূর্ব সুন্দর লাগছে এই রেলজলটা দেখতে তাজমহলের সামনে। গাইডের মুখে আমরা তাজমহলের কিছু জানতে পারলাম। অনেক কিছু ধরে ধরে উনি আমাদের মিনারগুলো জানাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এগুলো না সব সময় সবগুলোই চারটেই কিন্তু বাইরের দিকে করে একটু হেলানো আছে। এটার কারণ হচ্ছে যদি কখনো ভাবে এই যে মিনারগুলো পড়ে যায় বা কিছু হয়ে যায়, ভেঙে যায়, তাহলে এগুলো সবসময় বাইরের দিকে পড়বে। এই যে আসল যে তাজমহলটার মাঝখানের, এটাতে যাতে কোনো রকমভাবে আঘাত না হয়, তার জন্য এরকম চার দিকটা করেই হেলানো আছে। যদিও দেখলে খুব একটা বোঝা যায় না যে ওটা হেলানো আছে, আসলে এটাই কারণ যে কেন এগুলো হেলিয়ে করেছে একটু। তাজমহলের মধ্যে যে আরবি ভাষায় লেখাগুলো আছে, সেই লেখাগুলোও কিন্তু মার্বেল কেটে কেটে ছোট ছোট করে কেটে কেটে কিন্তু করা হয়েছে। ওগুলো কিন্তু একটু কোনো কালার টালার কিছুই নেই, পুরোটাই মার্বেল দিয়েই করা। এটাও জানা গেল তাজমহলের ওপরে 240 ফুট এবং নিচে 150 ফুট নিয়ে তাজমহল তৈরি করা হয়েছে। তাজমহলে প্রবেশ করতে হলে আপনাকে এরকম পায়ে মোজা টাইপের এগুলো পরে নিতে হবে, কভার, না হলে কিন্তু এটা আপনাকে ভেতরে যেতে দেবে না। এটা ওখানকার কম্পালসারি। इंटरलॉक से पत्थर को रोका गया है। ये जो लगाया है इंटरलॉक से लगा है, लॉकिंग सिस्टम से ये, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं ये मकराना मार्बल राजस्थान, जिसे संगमरमर बोलते हैं। थोड़ा इधर नीचे पैर में ये संगमरमर बोलता है इसको। ये जो लाल पत्थर जो मंगाया है, जो लाल पत्थर मंगाया है
ये सब धारपुर राजस्थान का है, जयपुर फतेहपुर सीकरी वहाँ से आया है। ताजमहल में इसमें 4 करोड़ रुपए लगे थे उस जमाने में जो गोल्ड के सिक्के चलते थे। अभी कितना 22 বছর লেগেছে বলে 22টা সিঁড়ি 22টা চূড়া। গাইডের কাছে আমরা জানতে পারলাম এই তাজমহল যে উনি ওনার বেগম শাহজাহানের বেগম মমতাজের জন্য করেছিলেন, মমতাজের সমাধিস্থলের পাশে কিন্তু শাহজাহানের সমাধিস্থলও ওখানে রয়েছে, সেটা আমরা জানলাম। हाथों से किया है ये हाथों से ये सिर्फ हाथों से ही तो बनाया है। ये छेनी हथौड़ी दिमाग पूरा लगाया है। एक इसमें से ये सारे डिजाइन निकाले हैं। आपको कितना ऊंचा बचा था? 240 फीट। ये नीचे से लेकर वहाँ तक देखिए, आपके जो अक्षर है, जो वर्ड हैं, ये एक बराबर है, लेकिन वहाँ से आपने छोटा जो पिनिकल है वो छोटा देखा। इनको हर पॉइंट पर बड़ा करते चलेंगे जिससे आपको बराबर दिखाई दे। আচ্ছা আচ্ছা, कितना दिमाग लगाए। এই যে দেখতে পারলাম তাজমহলের যমুনা নদী, যে যমুনা নদী ছিল না, ঠিক সেই যমুনা নদীর পরেও শাহজাহান কিন্তু একটা প্লাস তাজমহল করতে চেয়েছিল, সেটা নিজের সমাধির জন্য। তো যাই হোক, ওটা হয়ে পারিনি। এই যে সেই জায়গাটা, এটা অর্ধেক থাকার পরেও, ওটা অর্ধেক করার পর মানে কিছুটা করার পরেও ওটা বাকিটা করতে পারিনি। যাই হোক, এখন ওটা অনেকটাই ভেঙে দিয়েছে। ये स्टोन इस पर फिक्स किया है, समझ में आ गया? एक दूसरे के जॉइंट ऐसे करके जॉइंट এরকম করে। अरे काटे এটা হলো নওয়াবতখানা। এখানে গেস্টরা আসলে এখানে বাজনা বাজিয়ে তাদের আহ্বান করা হবে। এটা হচ্ছে আমলকি বাগান, দেখতে পাচ্ছেন? দেখেন আমলকি কিভাবে হয়ে রয়েছে। उनको आइडिया था कि देखने आएंगे, क्योंकि बिल्डिंग ही ऐसी बनाया है। तो जब बिल्डिंग बनाया है, अभी मौसम खराब हो जाए, बारिश आ जाए, कहाँ जाओगे आप लोग? इसीलिए टूरिस्ट के लिए बनाया है। ये पूरा नहीं पहना। বন্ধুরা, আমরা এখন চলে এসেছি আগ্রা ফোর্ট। এটা হচ্ছে এন্ট্রি নিচ্ছি আমরা, দেখা যাক ভেতরে কি আছে। আগ্রার তাজমহল থেকে এটা কত হবে? 4-5 কিলোমিটার হবে। জানি না ভেতরে ক্যামেরা দেখাতে পারবে কিনা, একটু দেখিয়ে দিলাম। দেখো লাল লাল স্টোন গুলো দিয়ে করা, দেখো বিশাল বড়। ফটোই তুলবো না বলে সেলফি ক্যামেরা ঘুরে अमर सिंह गेट। अच्छा, तो ये है, थोड़ा जोर से बोलिए। अमर सिंह गेट फर्स्ट गेट है, अमर सिंह गेट। आप इसमें अंदर नौबत खाना, यहाँ पे राजा लोग आते थे, फिर उनका स्वागत होता था वहाँ से। वो यहाँ पे दासियाँ फूल लेके खड़ी रहती थी, उनकी स्वागत के लिए। ওই যে ये विंडो है, फूल लेके खड़ी रहती थी दासियाँ, ওয়েলকাম करने के लिए है। डायरेक्ट एंट्री ना कर सके, क्योंकि ये दुश्मन आए, मुझे दिख जाते ना घोड़े पिछले ना, इसलिए सामने वो देख रहे हो, वहाँ से पत्थर फेंके जाते थे। अच्छा कोई दुश्मन एंट्री ना कर सके, वो उसके नीचे दब जाए। अच्छा अच्छा, अगर वो दीवार से छुपने की कोशिश करते थे, हाँ तो जो वो देख रहे हो, हाँ, उनसे गरम ऑयल, गरम पानी का इस्तेमाल किया जाता था। महल, আচ্ছা। इसमें अभी एंट्री करेंगे जहांगीर महल। अकबर আমরা এখন চলে এসেছি জাহাঙ্গীরের বাথটবটা দেখবো বলে। তো বাথটবটা দেখ,
ये वार्ड तक के ऊपर चारों साइड में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, गिरट लगा हुआ था। जिस जगह ब्रिटिश लोग का जमाना जब आया, इसे लॉर्ड कर्जन गवर्नर 1905 में ये वार्ड तक को उस किले में तो वहाँ से अकबर के महल में से उठा के यहाँ रखा टूरिस्ट को दिखाने के लिए। 5 फीट गहराई है, 8 फीट की चौड़ाई है, 3 टन इसका वजन है। 3 सीढ़ी अंदर है, 3 बाहर, ठीक है। ये गेट का जो आर्च, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर में दिया वाले दिन अकबर ने तीनों को मिलाकर एक मजहब चलाया था ना, दीन इलाही के भगवान अल्लाह गॉड एक ही है, नाम अलग अलग दिया गया। 1582 में हबीदा बानो के कहने से चलाया फतेहपुर सीकरी दीवानी खाट पर बैठकर। ऊपर में छोटी सी विंडो जो बनी है कि राजा के महल में लोग अंदर एंट्री करते थे तो ऊपर से फूल बरसा के आपका स्वागतम किया जाता था, वेलकम करने के। अभी मैं माफी चाहता हूँ, अभी आपको तो कोई नहीं बताएगा, आप देख लीजिए नहीं आएगा। এখন চলে এসেছি ভেতরের দিকে, ভেতরের গেট থেকে যাচ্ছি। मना कर, इस बिल्डिंग को उर्दू में कहते हैं रंग महल। रंग माने कलर, महल माने पैलेस। एक हिंदी शब्द में कहते हैं ना आंगन में एक नाच गाना। तो यहाँ बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठते थे। अकबर की पहली बेगम फर्स्ट वाइफ जिसका नाम था तुर्की सुल्ताना रुकैया बेगम। इधर में जोधाबाई के लिए जिसका असली नाम था हरका बाई। इधर में सलीमा बानो बैरम खान की बीवी, अकबर के गुरु थे बैरम खान, जिन्होंने उनको तलवार चलाना राजा बनाया। तो उनकी बीवी के साथ निकाह इसलिए किया, उन्होंने अपने हरम में नहीं रखा, उनके साथ निकाह करने के बाद यहाँ रखी है। ये वाला डाइनिंग रूम खाना खाने की जगह है। पहले कोई टेबल कुर्सी दस्तरखान होता है चटाई बिछाने के बाद। उधर में मुस्लिम किचन, सॉरी इधर में हिंदी, इधर में जो भैया लोग खड़े जहाँ जोधाबाई का मंदिर था। जहांगीर की वाइफ नूरजहां, मेहरू निशा उसका नाम। उसके बाद दूसरी जो रानी थी मान बाई, जो हिंदी मान सिंह की सिस्टर, उनके साथ निकाह करने के बाद जिसके बुआ बत्ती की दौर में पूजा करती थी इस जगह राधा कृष्णा की। इन्होंने ये पूरा नक्काशी किया, ये चारों साइड में इस जगह के अंदर राजस्थानी आर्किटेक्चर में दिया गया है। जहांगीर की बीवी वहाँ पर आराम करती थी उस जमाने में। पहले यहाँ पर्दे नहीं मैम, चटाई सिस्टम थी। आप अंदर से बाहर वालों को देख पाएंगे, बाहर वाला अंदर वालों को नहीं। ये पूरा लाइब्रेरी था, इस जगह में कुरान और गीता पढ़ने के लिए था। अकबर सहनशाह पढ़े लिखे नहीं थे, अकबर की रानी पढ़ी लिखी थी। मॉर्निंग टाइम के अंदर कुरान और इवनिंग टाइम में गीता सुनी। 2014 में इसको बंद किया है, 2014 में। ये 40 बाई 30 फीट के अंदर 40 बाई 30 फीट में किचन है कि यहाँ शुद्ध खाना बनता था। हिंदू रानी जोधाबाई ने फर्स्ट टाइम शादी होकर आई थी, उन्होंने यहाँ पर चूल्हा पूजा था। उसके बाद उनकी दासियाँ खाना बनाती। अभी इसको बंद इसलिए किया है, ये हमारे हिंदुस्तान के राजा लोग के दीवारों पर नाम वगैरह लिखते बदतमीजी करते, इसके हमारे बंद किया था। ये 510 साल पुरानी दीवार है। उस जमाने में उड़द की दाल, गन्ने का जूस, पेड़ की गोंद, मुल्तानी मिट्टी, खाना वाला चूना, राइस, बेलगिरी, चूल्हे की राख, उसको पेस्ट बना के दीवार को चुने गया है। ये अभी आपके सामने जो दीवार है जी थर्ड इस साइड में है। ये दीवार जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मैडम, इसमें डबल वॉल है ऐसे करके। ये ऐसे लगाया हुआ है जो पानी ऊपर में बिग वेल वाटर टैंक बना है, इसको उर्दू में कहते हैं बावली। वो जमाने राजा के टाइम में कोई जेट मशीन, इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था। लेदर के बकेट होते थे, व्हील के द्वारा पानी स्टोर करते थे। वो पानी दीवारों के अंदर में आता था। यहाँ पर सीलिंग होती थी, पूरे रूम को ठंडा करते थे एसी रूम बनाने की। ये उनका मेहमान जोधा अकबर मूवी में था ना कि जार जন্য বিয়ে করেছিল, जिसके लिए शादी किया था जोधा अकबर को, उस मंदिर के लिए दिया है। सिस्टर काल की होती ना डोली, शाहजहाँ की 2 बेटियां थी। बड़ी का जो नाम था जहानारा और ये सामने वाला ये छोटी बेटी का नाम हुस्नारा बेगम। ये ऊपर में पीतल लगा है, पीतल है, सोना नहीं है। सोना तो ब्रिटिश लोग ना 1857 के बाद सब निकाल के लेके चले गए। अभी हम लोग गेट के बाहर से बॉल के पीछे देखेंगे डबल खाई, उसमें मगरमच्छ रहते थे, शेर चीता ऊपर रहते थे। तो पीछे देखो दुश्मन अंदर आके अटैक नहीं कर पाए सुरक्षा के लिए। এখানে কুমির ছেড়ে রাখতো যাতে ওনার মেয়েরা
এখানে কেউ এসে ওকে মেয়েদের হামলা না করতে পারে। 2 মেয়ে ছিল। मैडम दादा ये ऊपर में छोटे छोटे कमरे जो नजर आ रहे हैं, ये राजा अकबर के टाइम में एक लेडीज का हरम था सिस्टर। हरम समझते हैं आप लोग बहन? नहाने की जगह वो हमाम होता है, ये हरम है। हरम माने लेडीज लोगों को रहने के लिए पर्दा सिस्टम। जो अकबर के पास 3 बेगम होने के बाद में भी 350 प्राइवेट रानियां रहती थी। जैसे युद्ध करने के बाद उनका शौर खत्म हो जाता था तो राजा का चंद कहना था लाइए अपने महल में रखना, उनको खाना पीना खिलाना, अपना वहाँ का काम कराना। नीचे में ये पूरा अंगूरी गार्डन, अंगूर होता ना वाइन बनाने के लिए इस तरह। और ये बीच में फाउंटेन था, जो गुलाब जल पानी होता ना, रोज वाटर। ऊपर में वाटर टैंक था। उस जमाने बेल्ट के द्वारा पानी स्टोर करते थे। जून जुलाई सितंबर अक्टूबर जैसे महीना गर्म होता था तो वहाँ से पानी छोड़ने के बाद पर्दे के द्वारा पानी जाता था पूरे रूम को ठंडा करने के लिए था। इस बिल्डिंग का नाम था खास महल। खास माने स्पेशल। रानी मुमताज का बेडरूम, जिसपे 14 में बच्चे में ताजमहल पहुँच गई थी। 13 बच्चे होने के बाद 14वें बच्चे में ताजमहल में थी। इसके अंदर खास महल है। खास माने स्पेशल। इसमें बीच में चंदन की लकड़ी का झूला होता था झूलने के लिए। ईरान के राजा थे नादिर शाह, ईरान के राजा, वो चंदन की लकड़ी के झूले को लेकर चले गए ईरान। ये सिंहासन पीकॉक थ्रोन इस वक्त नादिर शाह ईरान के पास में है। कोई ने नूर हीरा पंजाब के राजा रंजीत सिंह से लेकर ब्रिटिश लोगों के पास में कोई ने नूर हीरा ब्रिटिश लोगों को ताज पर लगा हुआ है। ये पर्दा बांधने के लिए रिंग दिया हुआ है, देखिए क्या आप देख रहे हैं। आइए अंदर आ जाइए प्लीज। रानी मुमताज के झूलने के लिए था सिस्टर। ऊपर में गोल्डन कलर जैसे दिख रहा है ना, गोल्ड पॉलिश चारों साइड में था। 1905 में ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन गवर्नर ने आग से जला के सारा सोना उतार के लेके चले गए। ये रिंग ना देखो, 1 2 3 4 5 6 पर्दा बांधने के लिए पर्दा सिस्टम। इस खास महल, खास मीन स्पेशल रूम्स सेपरेट। ये ऑल गोल्डन कलर पेंटिंग देयर, ब्रिटिश टाइम गोल्ड इंग्लैंड का म्यूजियम। गोल्ड पॉलिश को भी प्लेट नहीं, पॉलिश को भी खत्म किया। आइए इधर आएंगे। शाहजहाँ का जेल लिखा है, सलीम वाली बहन का उनका नाम नहीं आता है किताब में, जिसका नाम आया वही बताओ। वो जो जोधा अकबर का मूवी है ना, उसको नहीं, अरे वो अपनी बहन को बंदी बनाकर रखा औरंगजेब ने। बहन यहीं से शाहजहां बैठ के ताजमहल देखते थे अपनी रानी मुमताज के मरने के बाद। ये ऊपर में स्टोन है, शाहजहां का बंदी घर। ये ऊपर में स्टोन है, टाइगर, ये टाइगर, नीलम, पर्शियन, सोजा, ये रात में चमकते थे। मैडम ये रानी मुमताज का बाथरूम, इसका जो नाम था शीश महल। अंदर में छोटे छोटे शीशे थे, जिसमें एक चिराग जलाने के बाद 1000 लाइट नजर आती थी। अभी इसको बंद इसलिए किया, इसमें तो लोगों ने कम से कम 25% लोग शीशे निकाल के अपनी अनारकली मुमताज के लिए ले आने लगे थे। ये आपने एक मूवी देखी ना मुगल आजम, जिसमें गाना होता है प्यार क्या तो डरना क्या, वो इसी के अंदर बनाया। आइए जो खास मीटिंग करने के लिए स्पेशल। अच्छा। उधर काला पत्थर राजा के बैठने के, व्हाइट वाला मिनिस्टर के लिए। ये पूरा नीचे वाला मीना बाजार था, लेडीज मार्केट, जहाँ जो रानी लोग शॉपिंग करती थी रॉयल फैमिली के लिए। इसी बाजार को कुछ समय के बाद शाहजहां ने दिल्ली लाल किले में पहुंचा दिया। मैंने ये बीच में गार्डन बना, इसमें एक पानी का तालाब था और इस तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ होती थी। यहाँ पर शाहजहां बैठते थे और उधर में रानी मुमताज। जो राजा और रानी के बीच एक गेम होता था इस जगह शिकार करने के लिए। किस जगह के अंदर शिकार करते थे, जो राजा रानी के बीच में होता था। जो राजा हार जाते थे और रानी जीत जाती थी। कि आज भी जो वर्ल्ड में जितने भी राजा हैं 18 साल की उम्र के बाद सभी हारे हुए, कोई जीता हुआ नहीं है। कि राजा की नजर रानी पर थी और रानी की नजर गेम पर थी, इसलिए राजा हार गए। आइए अभी मैडम ऊपर ही आ जाइए, बच्चों को लेकर थोड़ा ऊपर आ जाइए, छज्जे से ऊपर आ जाओ। ये ऊपर में छोटे छोटे कमरे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस थे, दफ्तर जो फाइल जमा पेपर जमा करने के लिए, मनी जेल है।
का दीवानी आम माने जनता। ऊपर में वहाँ पर राजा बैठते थे और दोनों साइड में रानी, और नीचे उनके राइटर होते थे तेज का लिखने वाले मुनीम। यहाँ पे बीच में एक इंसाफ की जंजीर होती थी, बैल, जो बादशाह के टाइम में कोई भी फरियादी आता था उस शहर को जाते तो राजा को मालूम पड़ता कोई फरियाद लेकर आया है। इधर में ऑल वर्ल्ड के आदमी, ऑल वर्ल्ड मैंने यहाँ पे कंप्लेंट करने आते थे। उधर में मोती मस्जिद है जिसमें 2200 आदमी नमाज पढ़ते थे, वाइट वाले डॉग जो नजर आ रहा है। ये नीचे वाला कमांडर तोप जो रखा है जो ब्रिटिश टाइम का है, और ये समाधि ब्रिटिश आर्मी चीफ कमांडर जॉन रसल की है। ये जॉन रसल जो 1857 में गाइड हो गए थे और जो 1807 में यहाँ पैदा हुए थे 50 साल राज करने के बाद। ये ऊपर वाला पूरा इंडियन आर्मी एरिया है जो हम लोग देखिए मैम वो सामने गेट से आए, हम लोग सामने गेट से यो गए पूरा लाइन देखते हुए वापस उसी गेट पर आके जहाँ से स्लॉप हम लोगों ने एंट्रेंस किया। दिस ऑल द एग्जिट गेट इज द लास्ट पॉइंट हियर। अभी आप चारों नंबर यहाँ खड़े हो जाओ, मैं फोटो लेता हूँ दीवाने आम का। ये है तो जगह दोनों फोर्ट है ना अलग अलग है। ये जगह आप लोग देखेगा पहले, इसको अकबर का सीकरी कहता है। सीकरी है ना अकबर का पैलेस, जिसको आप कहते हैं राजबाड़ी। इसको घूमने के बाद आप लोग जाएंगे फतेहपुर। फतेहपुर अकबर का गुरुबाड़ी, वहाँ अकबर के गुरुजी की दरगाह है। लेकिन फतेहपुर सीकरी नाम रखने वाले मुगल थे ना बाबर अकबर का ग्रैंडफादर दादाजी, उन्होंने यहाँ आकर एक फाइट किया राणा संग्राम सिंह से 1527 में। उसी लड़ाई को बाबर ने फतेह किया। फतेह एक उर्दू वर्ड होता है जीता, विक्ट्री, इसलिए इसका नाम रखा फतेहपुर। सीकरी मुगलों से पहले का गांव था, उसे कंबाइन किया फतेहपुर सीकरी। लेकिन आप लोग जिस जगह पर खड़ा हुआ है इस पूरे को बोलता है दीवाने आम। दीवाने आम एक आम पब्लिक के लिए, जहाँ बादशाह अकबर आम जनता के साथ मीटिंग करते थे। इसके अंदर दीवाने खास, जहाँ अकबर बादशाह अपने नौ रत्नों के साथ मीटिंग करते थे। लेकिन बादशाह अकबर उधर बैठते थे, वो जो ऊपर में जाली है ना उसके बीच में अकबर बैठते थे। साइड से उनके मंत्री लोग, उनकी तीनों रानियाँ वहाँ बैठती थी। ये जो गार्डन है ये पब्लिक के बैठने का जगह है। उस टाइम ये गार्डन नहीं था, यहाँ पूरा लाल फातर बिछा हुआ था, वहाँ पब्लिक बैठता था। और ये जो कॉरिडोर देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ अकबर का सैनिक लोग खड़ा होता था। लेकिन अकबर जब इधर मीटिंग करने आते थे तो एक हाथी लाते थे। हाथी था ना खूनी हाथी, जो राजा मान सिंह ने जोधाबाई को गिफ्ट में दिया था, और उस हाथी को इधर बांधते थे। ये जो स्टोन का रिंग है ये हाथी के बांधने का जगह है। अकबर टाइम जो मुस्लिम होता था ना गुनहगार, उसको सज़ा नहीं दिया जाता था फांसी, उस गुनहगार को हाथी के सामने छोड़ दिया करते थे और हाथी उसको पाँव से मार दिया करता था। इसलिए यह हाथी के बांधने का जगह है। ऊपर में ही छोटा छोटा रिंग है ना, इधर में टेंट बांधते थे बारिश और धूप से बचने के लिए। अकबर टाइम कोई माइक नहीं होता था, उधर पब्लिक का असिस्टेंट खड़ा होता था, जो भी फैसला होता था पब्लिक के लिए वो राउंड लेके पूरे में सुनाता था। तो ये पूरा दीवाने आम था, पब्लिक प्लेस। अब आप लोग अंदर एंट्री करेंगे, उधर देखेंगे दीवाने खास, अकबर का खास मीटिंग करने का। वहाँ जनता के साथ मीटिंग होता था। लेकिन ये जगह आप देख रहे हैं इसको दीवाने खास बोलता है। यहाँ राजा अकबर खास मीटिंग करता था, इसको एक पार्लियामेंट कहते हैं अकबर का। देखिए ये ना डबल स्टोरी लग रहा है आपको, 2 पिलर अंदर जाएंगे। ये एक ही बिल्डिंग है, उसको साइड से सपोर्ट किया है, बीच में एक पिलर है। तो इसको आप लोग अंदर देखो दीवाने खास। अंदर चलो दीवाने खास। दीवाने खास बादशाह अकबर के खास मीटिंग करने का जगह। लेकिन अकबर के 9 रत्न थे, 9 मिनिस्टर। ऊपर देखिएगा 9 विंडो है चारों साइड। अकबर के मंत्री लोग उधर बैठते थे 4 साइड, लेकिन बादशाह अकबर बीच में बैठते थे, मिडल में। ये राजा के बैठने का जगह है। कोई भी मंत्री लोग अपना बात रखता था, ये 4 रास्ते थे, वो अपना बात वहाँ रखता था। ऊपर जाने का रास्ता एक उधर से है
और एक इस साइड से जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी 450 साल पुराना जगह है, इसलिए ऊपर किसी को नहीं जाने देते। जब अकबर इधर में खास मीटिंग करते थे तो नीचे उनके स्पेशल सैनिक लोग खड़ा होता था, सोल्जर, लेकिन वो लोग गूंगा और बहरा होता था, जो यहाँ का बात न सुनता था या किसी को बोलते थे, इसलिए इसको बोलता है दीवाने खास। अकबर का 3 वाइफ था, तीनों रानी अलग अलग मजहब से था। हिंदू रानी था जोधाबाई, मुस्लिम रुकैया बेगम, किरसन मरियम। तीनों को मिलाकर अकबर ने एक धर्म चलाया, दीन इलाही, सबका मालिक एक। तो उसका स्टार्टिंग यहाँ से क्या था। इसका जो डिज़ाइन है ना, पिलर पर अलग अलग डिज़ाइन है, आप लोग थोड़ा करीब से देखिए। दीवाने खास का यहाँ खास मीटिंग करते थे। 3 जगह रहे अकबर, आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, तीनों जगह दीवाने आम, दीवाने खास बनेगा। अब आप लोग जगह देखेंगे जहाँ बादशाह अकबर गेम खेलते थे, जिसको कहते हैं ना गेम ऑफ 25 लूडो, वो जगह देखेंगे। सामान डायमंड, गोल्ड, मनी वो यहाँ रखते थे। इसको कहता है ना खजाना महल, क्योंकि अकबर के टाइम कोई लोग वगैरह नहीं होते थे। इधर में जो दीवार है ना वो खाली है, अंदर से फाका, ऊपर से खुला हुआ है। रखने के बाद स्टोन इतना बड़ा होता था, उससे उसको बंद कर दिया करते थे। तो ऐसे आप लोग अंदर से देखो खजाना महल। इधर आ जाइए आप। ये पूरा अंदर से खाली है, लेकिन अकबर का 3 रानी था ना, ये छोटा छोटा घेर लिए, उनका रानी और दासी इधर में खेला करता था, जिसको कहता है ना आग पचोली, वो जगह खेलने का था। लेकिन मेन जो जगह था ये खजाना महल था अकबर का। अब आप लोग इधर से निकलेंगे थोड़ा आराम से। आपने देखा ना खजाना महल देखा, ये जो गुम्बद देख रहे हैं ना, ज्योतिष महारानी जोधाबाई थी ना, राजस्थान से थी, लेकिन वो एक रॉयल फैमिली से था, और उनके साथ में उनकी दासियाँ और ज्योतिष आई थी। खजाना निकालने से पहले महारानी जोधाबाई पहले ज्योतिष के पास जाती थी, पंडित जी से सलाह लेती थी। अगर उनका अच्छा गुड लक डे होता था तो वो निकालने का परमिशन देते थे, अगर नहीं होता था तो उनसे मना कर दिया करते थे। तो ये ज्योतिष के बैठने का जगह है। जोधाबाई या राजा या उनकी रानियों और को भी कोई भी सपना दिखता था तो उसकी जानकारी यहीं लेते थे। लेकिन राजा पहले है ना उधर खास मीटिंग करते थे, उसके बाद वो इधर से पब्लिक के बीच जाते थे। वो देखा था ना उधर जाली, ये दीवाने आम के बाहर जाने का रास्ता। लेकिन आप लोग ये जगह देखो, इसको बोलता है पंचमहल। पंचमहल का मतलब है ना 5 स्टोरी, वो 5 मंजिल है, 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन उसका खासियत है 5 मंजिल को पिलर पे खड़ा किया, कोई दीवार नहीं है उसमें, सपोर्ट बाई पिलर। उसमें जो पिलर है ना फर्स्ट पर 84, 84, 56, 20, 12 एंड 4 लास्ट। लेकिन अकबर का जो जोधाबाई था वो सुबह मॉर्निंग टाइम ऊपर जाकर सूरज को जल दिया करता था। मुस्लिम जो वाइफ था ऊपर से ईद का चांद देखता था। किरसन जो वाइफ था मरियम, वो अपना गॉड पूजा करता था। राजा अकबर शाम के टाइम रानियों के साथ वहाँ जाकर इस शहर का व्यू करते थे और हवा खाता था, इसलिए उसको हवा महल भी बोलता है। लेकिन मेन जो हवा महल है वो राजस्थान जयपुर का है। सामने वाले जो साइड वाला बिल्डिंग है ना 2 फ्लोर, ये स्कूल था अकबर टाइम का, मदरसा बोलता है ना, मुस्लिम स्कूल। उधर में रॉयल फैमिली अकबर और अकबर का मंत्री का बच्चा लोग पढ़ता था। ये फर्स्ट वाला पढ़ाने वाले टीचर थे ना अव्वल फजल फैजी, जिन्होंने एक हिस्ट्री निकाला था किताब आइन अकबरी, तो वो यहाँ पढ़ाते थे। ऊपर गर्ल्स पढ़ती थी, नीचे बॉयज। लेकिन आप लोग बीच में देखिए पत्थर नजर आ रहा है ना, टेबल स्टोन वाला, ये वाला, ये बैठा है। उधर में बादशाह और उनकी रानियां बैठती थी। लेकिन उधर में बादशाह अकबर के टाइम वहाँ पर गोटी की जगह वो जो होती थी ना दासिया सर्वेंट, उनको खड़ा करते थे रंगीन ड्रेस बनाकर। महाभारत में पासा होता है ना, वो पासा फेंकते थे। दासिया जब जगह चेंज करती थी वो डांस करते थे, तो उनका एक एंजॉय प्लेस, उसको कहते हैं ना गेम ऑफ 25 लूडो। तो आप करीब से देखो, ये बनाए ना चारों साइड, तो यही बादशाह अकबर गेम खेलते थे। ये पूरा गेम ऑफ पासा और अब लूडो चेस जो इसका है ना चारों साइड बनाया। यहाँ
ये जो बना हुआ है ना क्रॉस के डिजाइन, पूरा इस तरीके से बनाया। तो यहाँ राजा गेम खेलते थे। आपने एंट्री किया दीवाने आम, दीवाने खास, खजाना महल, ज्योतिष की जगह, पंचमहल, स्कूल, गेम ऑफ 25 लूडो। इसे कहते हैं अनूप तालाब। अनूप का तालाब है ना, मतलब अनोखा तालाब, एक खूबसूरत टाइम। ये उसी टाइम का टाइम था, लेकिन इसमें जो पानी है ना बारिश का, रेन वाटर, अभी भी इसमें 15 फीट पानी भरा हुआ है। लेकिन इसी को बोलता है ना चार चमन। चार चमन क्यों बोलता है? उसके बीच में जाने के 4 साइड से रास्ता है, लेकिन रास्ते को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अकबर टाइम पे एक सिंगर थे ना फेमस, तानसेन। तानसेन ने उधर बैठकर एक संगीत गाया था, दीपक राग। तो साइटों में दिए जल गए थे और रिमझिम बारिश हुआ था। उनके सामने जो होते थे ना वेजू बाबरा, उनमें कंपटीशन होता था। लेकिन अकबर और अकबर का फैमिली वो जो बालकनी है ना उधर बैठकर सुना करता था। एक फिल्म देखा आप लोगों ने, परदेश, शाहरुख खान और महिमा चौधरी की। परदेश में एक लास्ट में गाना हुआ, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, हो गया प्यार, वो इसी जगह पर हुआ था। परदेश फिल्म इधर बना। मुगल आजम, लाल पातुर, गरम हवा, कच्चे धागे, यतीम, इसी जगह का मूवी है। तो ये तानसेन का जगह है। लेकिन अकबर का 3 वाइफ था, तीनों का महल अलग अलग बनाया, लेकिन उनका जो महल बनवाया वो उनका पसंद था। जब ये किले को बनवाया गया तो राजा ने उनका ख्वाहिश पूछा कि आपको कैसा महल चाहिए, लेकिन वो जिस शहर से था उसी शहर का महल पसंद किया। तो उनका पहला वाइफ का महल है, मुस्लिम रानी का। लेकिन ये किले का सबसे छोटा महल है, एक ही कमरा है, बाकी के दालान है, लेकिन सबसे खूबसूरत है। उसमें जो नक्काशी किया है ना वो पूरा हाथ का कारीगरी है, हैंड वर्क है। इसी को शीश महल बोलता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ छोटा छोटा जगह था जहाँ कांच लगा था और डायमंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर चले गए, इसलिए शीश महल बोलते हैं। उधर में आप डिज़ाइन देखेंगे ना, अनार बना है, अंगूर है, लोटस फ्लावर है, तो वो जगह देखें आप, मुस्लिम रानी का महल। ये जो डिज़ाइन है ना ऊपर लोटस फ्लावर्स, कोई मशीनें नहीं था, लाइट नहीं था अकबर समय, ये हाथ के कारीगरी है। आप लोग ऐसे राउंड लेंगे, इधर आइए थोड़ा, ये बनाए ना अनार, अनार की बेल का डिजाइन। और इधर आइए, बनाए ग्रेप। पुराने टाइम का जो दरवाजा होता है ना, दरवाजा पुराने टाइम का जो दरवाजा होता था, डोर डिजाइन, बोले ये दरवाजों का डिजाइन है। अब आपको मतलब এখানে সব ডায়মন্ড ছিল, ডায়মন্ডগুলো নিয়ে চলে গেছে। उनका पैसा ना वो डायमंड का था, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले गए। वो पूरा शीश महल, चेहरा उनका होता है ना वो डायमंड का। हैंड मेक इन दिस प्लेस। अब आप लोग देखेंगे अकबर का बेडरूम। ये जो जगह देख रहे हैं ना, इसको बोलता है हमाम, शाही हमाम। हमाम होता है ना वॉशरूम, नहाने धोने का जगह। तो ये रॉयल फैमिली के नहाने धोने का जगह था। और ये जो देख रहा है ये उस टाइम का टप था, मटका। पहले है ना इस तरीके से कवर था ये, लेकिन टूट गया, इसको गवर्नमेंट ने रिपेयर किया है। इधर में उस टाइम जब पानी का कमी था तो पानी को यहाँ स्टोर किया करते थे पीने के लिए, और उसके बाद में रिवर्स होता था। ये उनका डाइनिंग रूम था, बादशाह अकबर यहाँ खाना खाते थे। इसे आप लोग भीतर से देखिएगा, ये डाइनिंग रूम है। बादशाह अकबर इधर में कालीन बिछाकर बैठकर खाना खाते थे। ये डिश लगा दिया जाती थी यहाँ, जिसको बफर सिस्टम कहते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद बादशाह को आराम करना होता था, तो इसी के अंदर अकबर का बेडरूम था। और जो बनाया ना पत्थर का बेड बनवाया है, लेकिन बेड का जो साइज है वो 10 बाई 10 का है, और वो थोड़ा हाइट पर है। लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, उससे चढ़ने के बाद उसे हटा दिया करते थे, जिससे कि उन पर कोई अटैक नहीं करे। तो उसे बोलते हैं आराम का, अकबर के आराम करने का जगह। तो आप लोग उधर से इतना ऊंचा था। ये है अकबर का बेड, और बादशाह यहीं पर आराम करता था। हाँ, ये हाइट पर है, सीढ़ी लकड़ी का था, लेकिन उसे हटा दिया करता है। खिड़की से हवा आता है, पीछे रोशनदान था, रोशनी के लिए और हवा के लिए। तो
इस पूरे को आराम का कहते हैं, आराम करने का जगह बादशाह अकबर का। ये अकबर का बेट था। अब हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा महल जोधाबाई पैलेस, सलीम चिश्ती पीर बाबा के आशीर्वाद से। इसी तरीके से वहाँ लोग जाते हैं ना फतेहपुर, उधर टिकट नहीं लगता है क्योंकि वहाँ मानता दरगाह की है। उधर लोग अपनी फैमिली, अपने बच्चों के नाम से मन्नतों का धागा बांधते हैं। जो भी लोग मनोकामना करते हैं वहाँ 100% पूरा होता है। तो बादशाह अकबर के किले का भी हम लोग ने एंट्री किया था ना, उधर भी कोई बड़ा गेट नहीं था, लेकिन जब हम लोग गुरु का दरगाह जाएंगे तो उधर में एंट्रेंस का दरवाज़ा बना हुआ है, उसको रॉयल गेट कहते हैं, जहाँ से राजा जाता था, और उसी गेट से आप लोग जाएंगे। तो ये अकबर का आराम का है। अब हम लोग जोधाबाई का महल में चलते हैं। ये जगह खाली है, यहाँ पर रोज वाटर पड़ते थे, गुलाब जल, जिसका खुशबू रहता था। लेकिन अकबर का ना हाइट कम था, 5 फीट 4 इंच। कोई दूसरा लोग अगर अकबर से मिलने आता था तो उसके लिए ये रास्ता था, क्योंकि कोई अगर हाइट वाला है तो वो स्टैंड नहीं, थोड़ा सा झुका कर आए रेस्पेक्ट के लिए। तो ये आने का रास्ता था लोगों का। ठीक है, आइए। रानी का महल था, रुकैया वाइफ का। ये महल देख रहा है, ये मरियम पैलेस, तीसरा वाइफ था अकबर का। लेकिन इधर कोई नक्काशी नहीं है। इधर में ना कुछ पेंटिंग था, जो देख रहा है ना वाइट वाइट, उधर गोल्ड पॉलिश भी था, लेकिन वो सब मिट चुका है। इसको बोलता था सुनहरा महल। ये मरियम का महल है। और ये आप देख रहा है, ये जोधाबाई का रसोई। जोधाबाई यहाँ खाना बनाता था, लेकिन जोधाबाई खाना बनाता था वेज, शाकाहारी। उधर जो देख रहा है वो दोनों वाइफ का है, वो लोग नॉन वेज बनाता था। लेकिन रानियाँ खाना बनाता था सम टाइम, कभी कभार। ज़्यादातर उनकी दासियाँ खाना बनाती थी। किसका? जोधाबाई और उनकी रानी। और जब ये रानियाँ खाना बनाती थी तो बादशाह अकबर उनको खाने बनाने का इनाम देते थे। ऊपर देखिएगा ये लाइन बनाए ना, झुमकों का डिज़ाइन अरेंज बना हुआ है। वो अपनी रानियों को उधर में डिज़ाइन पसंद कराते थे। जो भी डिज़ाइन उन्हें पसंद होता था वो उन्हें सोने के बनवार के, गोल्ड के बनवार के गिफ्ट दिया करते थे। तो वो पूरा राजस्थानी डिज़ाइन है। तो ये जोधाबाई का किचन, वो उनका दोनों वाइफ का है। ये सबसे बड़ा महल जोधाबाई का। लेकिन जोधाबाई पैलेस को आप लोग अंदर से देखेंगे। इसी के अंदर है ना ठंडा गर्म महल, समर विंटर पैलेस, सर्दी और गर्मियों के रहने का है। तो ऐसे आप लोग अंदर देखेंगे तो यही से हम लोग बाहर चलेंगे फतेहपुर, जहाँ सबसे बड़ा गेट, बुलंद दरवाज़ा और अकबर के गुरु जी की दरगाह है सलीम। ठीक है, आप सब लोग